mean and variance. Mean means expectation of random variable x. And we have defined these terms. So mean of x, I will just revise. Expectation of x is called mean of x. Mean of random variable x. And it is given by summation value of this variable small x multiplied by probability function of x, that is small x. This is the formula when capital X is discrete random variable. Discrete random variable. But if X is continuous random variable, instead of summation, there will be integration from minus infinity to infinity x into fx. Already I told you earlier that the integration and summation are not different, they are same. See, adding finite elements, we will use summation. Adding infinite countable elements, we will use summation. Countable की बात करें. But if random variable is not countable set, for example, set of real numbers is not countable. In that case, instead of summation, there will be integration. और इंटीग्रेशन होने की वजह से यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ेगा एंड दिस इज व्हेन एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. This expectation is also denoted by mu. So mean of x is Sir, denoted left by side mu. is. Okay, okay. Just a Sorry to minute, madam. disturb you, sir. Left side is not visible, sir. ये अभी जो लिखा हुआ है ये दिख रहा है क्या पूरा? सर थोड़ा सा और राइट में शिफ्ट करिए. ऐसे? यस सर, विजिबल है. ओके ओके. तो ठीक है मैडम, ये थोड़ा स्क्रीन के बाहर जा रहा है. मेरा ध्यान है कंप्यूटर पे, मुझे भी दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट variance. Already we defined variance also. Variance is denoted by sigma square. And this is given by expectation of capital X minus mu square. Now see, depending upon the discrete or continuous, we will have the separate definition. If our X is discrete random variable, we will use summation. The value of this variable, if X is variable, then X minus mu square is also variable. तो ये वेरिएबल की वैल्यू हो जाएंगी स्मॉल एक्स माइनस म्यू स्क्वायर. इसमें कैपिटल एक्स की जगह हमको स्मॉल एक्स रखना है एंड देन प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज स्मॉल एक्स. एंड दिस इज द फार्मूला इफ कैपिटल एक्स इज discrete random variable. Discrete random variable. If capital X is continuous random variable, in that case, instead of summation, there will be integration from minus infinity to infinity. All the rest of the things will be same. यानी यहाँ पर भी हम लिखेंगे x minus mu का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या इसका स्पेशल नाम क्या है? अगर कंटिन्यूस की बात करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स को मास फंक्शन बोला जाता है और उसी चीज को कंटिन्यूस में डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं. इंटीग्रेशन होने की वजह से मैं dx लिखूंगा. इफ कैपिटल एक्स इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट वी डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन is nothing but positive square root of variance. See, ये जो वेरिएंस जो है इसको हम VAR और ब्रैकेट में x का वेरिएंस है करके x. तो अगर हम ये सिग्मा स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं वी गेट स्टैंडर्ड डेविएशन. जो भी वैल्यू रहेंगी, वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, यू जस्ट टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट. क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे तो दो वैल्यूज रहेंगी. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. Okay, next we will solve some examples, simple examples, and you will find
the mean, variance. Okay, now let us solve one example where the variable is discrete random variable. Suppose that our random variable x, let capital X has following probability distribution, means probability function. यहाँ आपको x और fx यानी हर x और fx की वैल्यू दी हुई है. Suppose that we have x equal to 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज दी हुई है और इसके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है. 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1 की है 3/8, 2 की भी 3/8 है और 4 की सॉरी ये 3 की भी 3 की है 1/8. दिस इज गिवन एंड वी वांट, हमको निकालना है मीन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, then variance of x, third one is standard deviation, and suppose we want expectation of something different is given here, 2x plus 5. If x is random variable, then 2x plus 5 is also random variable. Now let us find all these things. First of all, you check whether your variable is discrete or continuous. क्या मुझे कोई रिस्पॉन्ड करेगा? Tell me whether x is continuous or discrete random variable. Please respond. हमारा x जो है जिसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट दिए हैं. Tell me whether our x is discrete random variable or continuous random variable. Nobody is responding. Continuous. No, not continuous. Continuous में सारी रियल वैल्यूज होती है माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक. ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, फाइनाइट सेट है हमारा एक्स कैसी है देखो, केवल 4 एलिमेंट है 0, 1, 2, 3. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया कि डिस्क्रीट कब बोलते हैं, जब फाइनाइट रहता है या तो काउंटेबली इनफाइनाइट. काउंटेबली इनफाइनाइट का एग्जांपल बताने का रहा तो मान लो मैंने z लिया, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें 0 रहेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इधर लेफ्ट में -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ये इनफाइनाइट सेट है. दिस सेट इज इनफाइनाइट बट दिस इज काउंटेबल सेट. क्या आप बता सकते हैं 2 के बाद वाला नंबर क्या होगा? कैन यू टेल मी? 0 है, 1 है, 2 है, उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा. 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा. आखिरी नंबर अगर मैं बोलता हूँ 1 लाख है, आर यू एग्री? नो. 1 लाख के बाद 1 लाख 1 है, मींस दिस सेट एंड सो ऑन लिखा है ना मैंने. दिस इज अप टू इंफिनिटी बट दिस इज काउंटेबल. 2 के बाद क्या है? 3 है. 3 के बाद 4 है, काउंटेबल है. तो जब भी काउंटेबल सेट रहेगा या तो फाइनाइट सेट रहेगा तो वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? जैसे रियल नंबर का सेट अगर मैंने लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, यहां पर सारी वैल्यूज है, 0 भी है, 1/2 भी है, 1 भी है, सारी वैल्यूज है. ठीक है, इधर लेफ्ट में भी सारी वैल्यूज है, -1/2 भी रहेगा. लेकिन यहाँ 0 और 1/2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है. 0 के बाद का नंबर हम नहीं बता सकते, ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूँ. 0 के बाद क्या बोलेंगे आप? 0.1 आता है करके बोलेंगे. तो फिर 0 और 0.1 के बीच में 0.001 भी तो है ना. तो हम बता ही नहीं सकते. तो ये भी सेट इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट है, बट दिस इज काउंटेबल. हम काउंट कर सकते हैं इसको. यहाँ काउंट नहीं कर सकते सेट ऑफ रियल नंबर्स में. तो ये होता है कंटिन्यूअस और ये डिस्क्रीट के एग्जाम्पल है. चलो
तो यहाँ हमारा x जो है उसमें केवल 4 एलिमेंट है, यानी फाइनाइट सेट है करके ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो लेट अस अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ मीन ऑफ x। पहला वाला पार्ट हम निकाल रहे, मीन ऑफ x, इसी को हम म्यू बोलते हैं, इसी को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोलते हैं। अब डेफिनेशन जो अप्लाई करनी है वो डिस्क्रीट की करनी है, यानी क्या लिखेंगे हम, समेशन इसकी वैल्यू, यहाँ जो भी कुछ है उसकी वैल्यू बोला तो स्मॉल लेटर लिखिए, कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स, ये वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ। ठीक है, अब ये फार्मूले से हमको मीन मिलेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये प्रॉब्लम दिया और इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोला है, बट इज इट ट्रू, ये वाकई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्या? तो देखो, सारी वैल्यूज नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब जीरो या पॉजिटिव। सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी निगेटिव तो है ही नहीं। चलो, एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, इनकी सबकी टोटल 1 होनी चाहिए। तो देखो, अगर ये 4 क्वांटिटीज अगर हम ऐड करते, डिनोमिनेटर में 8 है तो एलसीएम 8 आएगा, ऊपर में 1 + 3 + 3 + 1, 8/8 1 आता है, यानी ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन करेक्ट है। अगर यहाँ वैल्यू में कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो प्रॉब्लम गलत है करके बोला जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट, चलो लेट अस फाइंड मीन। अब करना क्या है हमको, एक एक एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके मल्टीपल में उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। एक्स की पहली वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0, 0 के मल्टीपल में प्रोबेबिलिटी रहेंगी 1/8। ओके, फिर नेक्स्ट वैल्यू ली मैंने 1, 1 के मल्टीपल में 1 की प्रोबेबिलिटी रहेंगी 3/8। देन प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, उसके मल्टीपल में 2 की प्रोबेबिलिटी 3/8। एंड फाइनली वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 और मल्टीपल में उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। इसको ऐड कर दो तो आपको मीन मिलेगा। देखो क्या है, पहली टर्म तो 0 ही आ रही है, ये आ रही है 3/8 प्लस 3 इंटू 2 6/8 प्लस 3/8। अगर इनके एडिशन करके एलसीएम 8 आएगा, ऊपर आएगा 6 और 6 12, 12/8। 12/8 मीन एस क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 3/2। ये हो गया मीन, इसको बोलेंगे हम म्यू, ये मीन है म्यू। ठीक है, उसके बाद में हमको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स का। सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं मैं। वेरिएंस ऑफ एक्स is given by expectation of capital X minus mu mean square। अब ये तो जनरल फार्मूला हुआ, अभी मुझे स्पेसिफिकली डिस्क्रीट का फार्मूला लिखना पड़ेगा, यानी एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन जो है डिस्क्रीट वाली वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट समेशन, इसकी वैल्यू बोला तो कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स लिखने का, स्मॉल एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ये हो गई डेफिनेशन। दिस इज इक्वल टू, अब म्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी है, व्हाट इज निकाली हमने, तो यहाँ रहेगा x माइनस म्यू बोला तो 3/2 उसका स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब मैं यहाँ x की वैल्यू रखूंगा, यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। तो दिस इज गिवन बाय, x की पहली वैल्यू 0 है तो 0 माइनस 3/2 स्क्वायर इंटू 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/8। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 1, तो 1 माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू 1 की प्रोबेबिलिटी है 3/8 प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 2, तो 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है, और प्लस आखिरी टर्म, आखिरी x जो है वो हमारा 3 है, तो 3 माइनस 3/2 स्क्वायर और फिर 3 की प्रोबेबिलिटी 1/8। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या आ जाएगा, 9/4
माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4 इंटू 1/, प्लस यहाँ पर देखो 2 माइनस 3 यानी माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीपल में 3/, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 1/2 आ रहा है, 1/2 का स्क्वायर अगेन 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, और आखिरी जो टर्म है यहाँ एलसीएम 2 3 2 जा 6 6 माइनस 3 3 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। दिस इज इक्वल टू, ऊपर देखो 9 इंटू 1 9, नीचे आ रहा है 32 प्लस 3/32 प्लस 3/32 प्लस 9/32। अगर एलसीएम लेके तो 32 आएगा, और ऊपर 9 और 3 12 और 3 15 15 और 9 24 24/32, ये आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। कैंसिल करो तो ये आ जाता है 3/4। व्हाट इज दिस? दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। और भी एक बात बताता हूँ, यहाँ सिंगल वेरिएबल है एक्स, तो आपने ऐसे लिखा तो चलता, लेकिन अगर दो दो वेरिएबल रहे तो फिर यहाँ लिखना पड़ता वेरिएंस ऑफ एक्स, तो सिग्मा सफिक्स में एक्स लिखने का स्क्वायर। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो ये सफिक्स लिखने की जरूरत है, क्योंकि दो दो वेरिएबल है, वेरिएंस भी दो दो है, तो वो अलग अलग दिखने चाहिए ना, दोनों को हम सिग्मा स्क्वायर कैसे बोलेंगे? तो एक को सिग्मा एक्स स्क्वायर, दूसरे को सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द वेरिएंस ऑफ एक्स 3/4। अब मुझे निकालना है तीसरे पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन is nothing but positive square root of variance. तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो वो क्या आएगा? √3/2। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हमको चौथा पार्ट जो है उसमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल इज गिवन। व्हाट इज दैट वेरिएबल? इट इज 2x plus 5। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x plus 5। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला अप्लाई करो डिस्क्रीट वाला, तो यहाँ आएगा समेशन, फिर यहाँ जो भी कुछ है उसकी वैल्यू, वैल्यू बोला तो कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स लिखना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2x plus 5 और मल्टीपल में x की प्रोबेबिलिटी f(x). अब यहाँ पर भी हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और मल्टीपल में प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 लेंगे, तो ये 2 इंटू 0 0 प्लस 5 यानी 5 इंटू 0 की प्रोबेबिलिटी 1/, प्लस नेक्स्ट x था हमारा 1, तो 2 इंटू 1 2 2 प्लस 5 यानी 7 आएगा, मल्टीपल में उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। नेक्स्ट वेरिएबल जो था हमारा वेरिएबल की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 4 4 प्लस 5 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 की प्रोबेबिलिटी थी 3/8, प्लस आखिरी x की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 2 6 6 प्लस 5 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 की प्रोबेबिलिटी, मैंने x की वैल्यू 3 रखी है, 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 5/8 प्लस 21/8 प्लस 27/8 प्लस 11/8। दिस इज इक्वल टू एलसीएम इज 8। एडिशन कर दो, 21 और 5 26 26, ये हो गए 53, 26 और 27 53 54 64 64/8 इक्वल टू 8। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी रहने, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता था तो एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ स्मॉल एक्स स्क्वायर होती है, बस आपको एक्स की वैल्यू रखनी है, मल्टीपल में उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, you can find the mean, variance, standard deviation like this. Now I am giving you simple formula to calculate variance of x. देखो ये variance of x की ये definition है,
लेकिन ये फार्मूले को और भी सिंपल बनाया जा सकता है सो दैट यू कैन कैलकुलेट वेरिएंस वेरी इजीली। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मैं जो दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ उससे जल्दी वेरिएंस निकलेगा। ठीक, हमको प्रूव करना है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। ये फार्मूला जो है कंपैरेटिवली और भी इजी। ओके, चलो तो ये कैसे प्रूव करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ ओरिजिनल फार्मूला। वेरिएंस ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, म्यू मीन्स मीन स्क्वायर। इसको एक्सपांड करो तो दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर इसको एक्सपांड करते तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर। टर्म सेपरेट करो अब इसकी, तो पहली टर्म आएंगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 म्यू, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है हमारा एक्स, तो आई कैन टेक 2 म्यू आउटसाइड, देयर विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाले नहीं तो अगर अंदर भी रखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर। देखो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट सी विल बी सी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी ये क्या मिला देखो, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू इंटू ये भी म्यू है प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, सो हियर वी विल हैव म्यू स्क्वायर। तो ये फाइनली बनता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ देखो माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर यानी माइनस म्यू स्क्वायर, और ये म्यू बोला तो क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है माइनस व्हाट इज दिस इज म्यू, म्यू स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है एप्लीकेशन में या प्रॉब्लम फास्ट अगर करना है तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट we will solve one example on continuous random variable, how to find mean, variance, standard deviation. Okay. Find mean and variance for the random variable x having density function fx equal to e raised to power minus x. This is when x is greater than or equal to 0 and 0 for x less than 0. देखो ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है। ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन ये वर्ड यूज किया। डेंसिटी फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस का है तो डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, और डिस्क्रीट का है तो उसको बोलते हैं मास फंक्शन। तो इसके ऊपर से हमको पता चलता प्रॉब्लम कंटिन्यूअस का है। सेकंड थिंग, आपको यहाँ जो प्रोबेबिलिटी दी है देखो कहाँ से कहाँ तक दी है, यहाँ x 0 से इंफिनिटी तक, और यहाँ पर x 0 के पहले अप टू माइनस इंफिनिटी, यानी यहाँ जो x है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के रेंज में डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारा कंटिन्यूअस का। तो अभी हम सबसे पहले निकालेंगे मीन।
मीन ऑफ एक्स, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। व्हाट इज द फार्मूला? इट इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला अप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू, अभी हमारा वेरिएबल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है करके इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट रहेंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फिर ये वेरिएबल की वैल्यू स्मॉल एक्स रहेंगी, फिर कैपिटल एक्स का प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स एंड देन डी। तो यहाँ हमको इंटीग्रेशन करना है क्योंकि प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है। दिस इज इक्वल टू, अभी देखो ये जो रेंज है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये रेंज में एफ एक्स के दो टुकड़े किए। एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो ये वैल्यू, एक्स अगर जीरो से छोटा है तो ये वैल्यू, तो इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जाऊंगा, प्लस फिर जीरो से मैं जाऊंगा इंफिनिटी। देखो एक्स लिख दिया मैंने। अब माइनस इंफिनिटी से जीरो, ये रेंज में एफ एक्स की वैल्यू क्या है? देखो हमारा एक्स जो है ये वाले रेंज में वो जीरो से छोटा है। एक्स जब जीरो से छोटा रहेगा एफ एक्स की वैल्यू जीरो, प्लस यहाँ पर x जीरो से बड़ा है, तो जब x जीरो से बड़ा रहेगा वैल्यू है e रेस टू माइनस एक्स, तो पहले ये x लिख दिया, फिर e रेस टू माइनस एक्स एंड देन ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो जीरो है, केवल इसी को निकालना है। तो देयरफॉर मीन ऑफ एक्स यानी न्यू इक्वल टू हमको मिल रहा है, मैं यहाँ बाय पार्ट अप्लाई करूंगा। अब बाय पार्ट में भी ये मेरा पहला फंक्शन है, ये मेरा दूसरा फंक्शन, यहाँ एक ही बार बाय पार्ट कर सकते क्योंकि x का पावर 1 है। तो यहाँ मुझे बाय पार्ट अप्लाई करना है। तो देखो एक आपको बाय पार्ट का एक मैं जनरल फार्मूला बताता हूँ, उसको जरा ध्यान में रखना, उसकी मदद से प्रॉब्लम बड़े आसानी से होता है। सी हियर द पावर ऑफ x इज 1, तो एक ही बार बाय पार्ट आएगा। लेकिन अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहता था तो दो बार बाय पार्ट, क्यूब है तो तीन बार बाय पार्ट, तो वो बहुत लेंदी हो जाता, आपके पास समय नहीं रहता गेट एग्जाम में, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ जिसमें तीन बार क्या 10 बार बाय पार्ट रहने दो ना, एक लाइन में हो जाएगा। ठीक, ऑलरेडी आपने फार्मूला इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, मैं फिर से बताता हूँ कि जब भी आपको यहाँ पर दो फंक्शन दिए u और v और बाय पार्ट अप्लाई करना है, सबसे पहले देखो पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एज पर लिएट सीक्वेंस। लिएट, L फॉर लॉगरिथमिक, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। वो सीक्वेंस में इसको अरेंज करने का, पहला फंक्शन एज इट इज लिखने का, दूसरे का इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन को v1 बोल रहा हूँ, v1 बोला तो इंटीग्रेशन ऑफ v, ये ध्यान में रखना। इतना हो गया कि इधर देखने की जरूरत ही नहीं, माइनस साइन देने का, इसका डेरिवेटिव लिखने का u डैश, इसका इंटीग्रेशन लिखने का v1 का इंटीग्रेशन v2, फिर प्लस साइन, फिर u डैश का डेरिवेटिव लिखने का u डबल डैश, फिर v2 का इंटीग्रेशन लिखने का v3, फिर माइनस साइन। इस तरीके से आप करते चले जाओ। अगर मान लो यहाँ u की जगह पे x है तो यहाँ 1 रहेगा, ये टर्म जीरो रहेंगी और इसके बाद की सारी टर्म जीरो। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और उसके बाद में डेरिवेटिव जीरो होगा तो आगे की सारी टर्म जीरो। तो ये अगर फार्मूला आप अगर ध्यान में रखते हैं तो बाय पार्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो बड़े आसानी से कम समय में कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मेरा ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, मैं पहला फंक्शन एज इट इज लिखता हूँ लेकिन ब्रैकेट में लिखते जाने का, दूसरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इज माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, हर चीज ब्रैकेट में लिखनी चाहिए। फिर इसके बाद हमको देना है माइनस साइन, फिर इसका डेरिवेटिव लिखना है 1, फिर इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो ऑलरेडी माइनस साइन एक आ रहा है, फिर एक माइनस आएगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस, और इसके बाद वाली टर्म में 1 का डेरिवेटिव रहेगा वो जीरो रहेगा, तो आगे हमको कुछ
आगे हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि नेक्स्ट टर्म विल बी 0। अब यहाँ मैंने लिमिट दे दी है 0 to इंफिनिटी। अब देखो जरा इसको मैं सिस्टमैटिक लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिमिट रखता हूँ। तो व्हाट इज कॉमन हियर, माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो माइनस साइन बाहर ले सकते हैं हम। ई रेस टू माइनस एक्स भी बाहर आएगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वन इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ हम लिमिट रखेंगे 0 to इंफिनिटी। अब देखो अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रखी, एक बात ध्यान में रखना, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी इज 0, तो ध्यान में रखो। तो x की वैल्यू जब इंफिनिटी रखेंगे तो e का पावर माइनस इंफिनिटी, यानी अपर लिमिट के लिए ये माइनस साइन मैंने लिख दिया, अपर लिमिट के लिए 0 आएगा, फिर माइनस साइन। अभी x की वैल्यू 0 रखो तो ये 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, यानी 1 इंटू 1 यानी 1 बनेगा। तो दिस इज इक्वल टू वी गेट माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1। तो ये आ गया मीन ऑफ x। इसके बाद हमको निकालना है वेरिएंस, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए मैंने एक सिंपल फार्मूला दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये तो मीन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोला तो मीन है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, ये चीज कैलकुलेट करनी थी और ये कैलकुलेट करके यहाँ रखो। अदरवाइज यूज ओरिजिनल फार्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू एफ एक्स, है ना, वो वाला फार्मूला यूज करो, यानी इंटीग्रेशन रहेगा वहाँ। एनीवे उससे ये जरा ज्यादा आसान लगता है यूज करना। देखो अदरवाइज हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, और इस डेफिनेशन क्या रहेंगी इसकी, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्मॉल एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी। व्हाट आई मीन टू से, ये इंटीग्रेशन करने से बेटर ये चीज को निकाल लो, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो जल्दी मिल जाएगा वेरिएंस, ठीक है। तो ये इसको हम यूज नहीं कर रहे, ओके। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, ऑलरेडी ये वाला पार्ट हमने निकाला है, यू जस्ट फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। देखो फर्क इतना ही है कि इसका एक्सपेक्टेशन निकालने से ये एक्सपेक्टेशन जल्दी निकलता है, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर करो, ये बोला तो ये पूरा बोला तो ये हो जाता है, ये चीज तो ऑलरेडी हमने निकाली है, केवल इतना निकालो, और ये जो है इसके कंपैरिजन में इजी है, जल्दी होता है। मैं समय बचाने के हेतु बता रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ये डेफिनेशन में आप बस एफ एक्स की वैल्यू रखो, इसको तोड़ो पहले, एफ एक्स की वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो। एनीवे लेट अस फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज गिवन बाय, देखो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो फार्मूला रहेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फिर इसकी वैल्यू रहेंगी स्मॉल एक्स स्क्वायर, फिर एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तो पहला पार्ट रहेगा माइनस इंफिनिटी टू 0 और सेकंड पार्ट रहेगा 0 टू इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब ये रेंज में एफ एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस ये पार्ट में ये एक्स स्क्वायर लिखने के बाद एफ एक्स की वैल्यू है ई रेस टू माइनस एक्स। ये पहला पार्ट तो 0 है, सेकंड पार्ट इवेल्युएट करो, प्लस देखो यहाँ फिर से बाय पार्ट लगाना है, और बाय पार्ट का टेक्निक होता है ये जो मैंने फार्मूला बताया ना, इंटीग्रेशन ऑफ यूडीडी, ये वाला यूज करना है, यानी एक लाइन में, अरे 10 बार बाय पार्ट रहने दो ना, एक ही लाइन में इवेल्युएट हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखो ये मेरा पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है, ब्रैकेट में लिखने का। तो ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, फिर उसके बाद इधर देखने की जरूरत ही नहीं, इधर ही लिखने का, माइनस साइन दिया, पहले इसका डेरिवेटिव लेकिन ब्रैकेट में लिखने का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, फिर प्लस साइन आएगा, फिर ये 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, और इसके बाद में गाड़ी रुक जाएंगी क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो यहाँ गाड़ी रुक जाती है। यहाँ पता है 2 बार बाय पार्ट अप्लाई हुआ,
लेकिन एक ही लाइन में होगी। और अब लिमिट रखेंगे 0 टू इंफिनिटी। ठीक, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, उसको कॉमन निकालेंगे। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, इधर भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन बाहर निकल आएंगे। ई रेस टू माइनस एक्स को भी बाहर निकालते हैं, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू माइनस एक्स, और पूरे लिमिट रहेंगे 0 टू इंफिनिटी। अब जब अपर लिमिट रखेंगे, ये माइनस साइन मैंने पहले लिख दिया, अपर लिमिट अगर रखते हैं तो ई का पावर माइनस इंफिनिटी जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट के लिए जीरो वैल्यू आएंगी माइनस। अब अगर लोअर लिमिट रखते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये हो जाएगा 2 इंटू वन, ई का पावर जीरो मीन्स वन, तो ये आ जाएगा 2। तो अगर इसको देखो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, ये कुछ वेरिएंस नहीं है। वेरिएंस तो तब मिलेंगे जब हम यहाँ रखेंगे, वन में रखेंगे। तो therefore one implies, therefore one implies variance of x इक्वल टू, सबसे पहले है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया है 2 माइनस मीन या एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू विद 1। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन और वेरिएंस को। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इसका रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1, माइनस 1 मत बोलना क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट चाहिए। Okay, so in this way we can calculate the mean, variance, standard deviation. Okay, next I am going to start the conditional probability. Now, what is conditional probability? See, you have in examination many of the times Bayes rule is asked in GATE examination particularly. So Bayes rule is application of conditional probability, I will say. Okay. Uh, Now, what is conditional probability that we will see, and then I will explain Bayes rule. नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें मैं एग्जांपल्स की प्रैक्टिस लूंगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो, लेट ए एंड बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी be two events in sample spaces then probability of happening of an event A event A, then another event, another event B is known to have already happened, already happened, is called conditional probability of A, is called conditional probability of A given B, given event B. Now I will give the formula for finding this conditional probability, and then I will explain this concept using simple example in daily life. Okay. Now see, it is denoted by, it is denoted by
probability A given B, and the formula is probability of A intersection B divided by P of B. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकालना है, फार्मूला है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लो ये हमारी सैंपल स्पेस है और ए नाम की कोई इवेंट है, दिस इज एन इवेंट इन सैंपल स्पेस एंड देयर इज अनदर इवेंट बी, ये कोई और इवेंट। हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी? ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट व्हेन इवेंट बी इज टेकन प्लेस। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लो इस एरिया में आप रहते हो, यहां रहते हो, और ये जो एरिया है, ये एरिया में आग लगी है, फायर है। नेचुरली यहाँ जो है ये लोग अफेक्टेड, क्योंकि ये ए में रहते हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा बी में भी आ रहा है। इतने एरिया में आग लगी हुई है, यानी नेचुरली ए का इतना पार्ट जो है वो अफेक्टेड है। अगर यहाँ रहने वाला स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचेगा तो राइट टाइम पहुंचेगा, लेकिन यहाँ रहने वाला स्टूडेंट कॉलेज में पहुंचते वक्त उसको देरी हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहेगा अगर आग लगी है तो अगर मैं किसी स्टूडेंट के कॉलेज आने की प्रोबेबिलिटी, राइट टाइम कॉलेज पहुंचने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, अगर वो लड़का यहाँ रहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बराबर टाइम पे पहुंचेगा। लेकिन यहाँ अगर रहता है तो उसके पहुंचने के चांसेस अलग रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जब इवेंट बी, ये घटना घट चुकी है, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड, तो आपको ये इवेंट का इसके ऊपर असर रहेगा। तो यहाँ हमको करना क्या पड़ता है, ये जो इंटरसेक्शन है इसको डिवाइड करना है बी के प्रोबेबिलिटी से, यानी ये बी में से कितना हिस्सा यहाँ है वो न्यूमरेटर, out of this b, this much is nothing but the probability of event A given B। अब एक एग्जांपल ऐसे भी लेंगे हम। मान लो यहाँ A इवेंट है, ये A इवेंट और यहाँ B इवेंट। आप यहाँ रहते हो और यहाँ आग लगी हुई है। यहाँ अगर आग लगी है और आपके कॉलेज में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मुझे बताओ जहां आग लगी वो एरिया आपके घर से दूरी पर है, तो नेचुरली आप टाइम पे पहुंचोगे कॉलेज में, क्योंकि यहाँ आग लगने से यहाँ के बच्चे को कॉलेज पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। यहाँ दिक्कत है, किसको दिक्कत है? इसको नहीं है, लेकिन इसको दिक्कत जरूर है। तो यहाँ देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, दोनों भी डिसजॉइंट है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो नेचुरली ये जो टर्म है ये प्रोबेबिलिटी जीरो आ जाएंगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, विल बी जीरो, सॉरी दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी, जीरो नहीं बोलेंगे, ये चीज जो है ये जीरो रहेंगी। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये चीज जीरो रहेंगी। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, अगर ऐसी बोला तो ये भी जीरो बोलूंगे आप। व्हाट आई मीन टू से, जब इसके साथ ये मैचिंग मत करो, ये देखो जब भी ए और बी इंडिपेंडेंट रहते हैं तो होता क्या है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये एग्जांपल मैंने बताया था पहले, जब इंडिपेंडेंट होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहलाती है। और ये फार्मूले के तहत क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी रखेंगे तो पी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, पी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ऑफ ए। देखो ना, मैं ये न्यूमरेटर को रिप्लेस कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट से, तो पी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा राइट हैंड साइड में, पी ऑफ ए, यानी आपको ये वाला रिजल्ट मिलता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर दो बच्चों के हाथ में गन है और एक टारगेट है, टारगेट को शूट करना है, तो ए ने शूट करना है, इसके ऊपर बी का कोई रोल नहीं है, बोथ आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। ए शूट कर रहा है, बी शूट कर रहा है, किसी का लगेगा किसी का नहीं लगेगा, दे आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या होता है, दे टारगेट जो है वो हिट हुआ, तो वो हिट हुआ ए से या बी से करके यहां मल्टीप्लीकेशन आता है। बोथ आर ट्राइंग इंडिपेंडेंटली, सो व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यहां पर ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, बिकॉज दे डू नॉट हैव इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ जीरो है, तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन जीरो है करके ये प्रोबेबिलिटी जीरो बोलेंगे तो ये जीरो ही आ जाएगा, ये जीरो नहीं है। लिसन, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और फिर पी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो, और ये भी ध्यान में रखो, ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई। तो एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना जब अलग दूसरी इवेंट हो चुकी है इज नथिंग बट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। नेक्स्ट, इसके ऊपर एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। चलो, बिफोर टेकिंग दैट एग्जांपल आई विल स्टार्ट बेस रूल, क्योंकि बेस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल हम प्रैक्टिस के दौरान कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के भी कुछ एग्जांपल कवर करेंगे। आप तब तक के कंसेप्ट अच्छी प्रिपेयर करके रखो, मैंने कल बोला था नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ व्हाट इज बेस रूल? बेस रूल, दिस इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड रूल, इसका बहुत एप्लीकेशन है। सी, लेट a1 a2 a3 an for, these are the events, ये events है, let events a1 a2 a3 and so on form a disjoint partition, form a disjoint partition of sample spaces okay? ये हमारा सैंपल स्पेस है और इसके पार्टीशन है a1 a2 a3, these are the partitions of sample space X and they are disjoint। ये disjoint है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं, इन दोनों का भी कोई इंटरसेक्शन नहीं, मीन्स इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये जो n है इसको हम पार्टीशन बोलेंगे, किसके? सैंपल स्पेस है इसके, ये पूरी सैंपल स्पेस। और पार्टीशन आप ही देखो ना यार, एक कमरा है और एक कमरे के अगर हमने पार्टीशन कर दिया तो इधर का आदमी इधर नहीं दिखेगा, इधर का आदमी इधर नहीं दिखेगा, कॉमन में कोई आदमी नहीं रहेगा। ये दीवार डाल दी है तो ये पार्टीशन बन गया, तो दे आर डिसजॉइंट। तो ये डिसजॉइंट सेट्स है, इवेंट्स है, और ये क्या कर रहे हैं? पार्टीशनिंग कर रहे हैं एस का, सैंपल स्पेसेस का। एंड सपोज दैट देयर इज अनदर इवेंट भी, ये कोई इवेंट भी है, आगे लिख रहा हूं मैं, एंड कैपिटल बी बी एनी इवेंट इन एस, ये कोई इवेंट है। अब देखो ये इवेंट का कुछ पार्ट जो है A2 में आ रहा है, A3 में आ रहा है, A5 में आ रहा है, A4 में भी आ रहा है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, यानी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे किसी एक इवेंट की, व्हेन इवेंट बी इज टेकन प्लेस,
इवेंट बी घट चुकी है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला जो है, देखो लास्ट टाइम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए आई के बदले एक ही था ए, यहाँ पर ए की जगह देखो A1 A2 A3 एन इवेंट है। ये समझ के चलो ये अलग अलग एरिया है नागपुर का, ये नागपुर के अलग अलग एरिया है और यहाँ कहीं आग लगी हुई है, ये इतने एरिया में आग लगी हुई है। तो यहाँ पर A1 वाला कोई नहीं आ रहा क्योंकि A1 और B इसका कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, लेकिन A2 और B इसका इंटरसेक्शन दिख रहा है हमको, ये इतना पार्ट देखो A2 में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है A1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो रहेंगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ही रहेगी, लेकिन ये निकालते वक्त ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। A5 यहाँ से यहाँ तक A5 है, ये इतना पार्ट जो है कवर यानी कॉमन में आ रहा है, कॉमन में जो पार्ट आ रहा है ये इतना पार्ट आ रहा है कॉमन में, तो नेचुरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ और रहेंगी। A4 का भी ये इतना पार्ट अफेक्टेड है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 व्हेन इवेंट B इज टेकन प्लेस विल बी डिफरेंट। यहाँ मान लो A7 है, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो रहेंगी वो इसी के प्रोबेबिलिटी के इक्वल रहेंगी। वाई? क्योंकि A7 B से अफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में ये सब एन जो इवेंट्स है ना उसके बदले केवल एक ही इवेंट थी ए एंड बी वाज अनदर इवेंट। अब यहाँ पर ये एन इवेंट्स है विच आर डिसजॉइंट एंड वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई व्हेन इवेंट बी इज टेकन प्लेस। आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक कुछ भी रह सकती है। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस? दिस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन जब एग्जांपल लूंगा तो बहुत आसान लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 into probability of B given A2 plus probability of A3 into probability of B given A3। सर ये n नंबर तक चलते रहेगा क्या? हाँ हाँ, ये n नंबर तक के डिनोमिनेटर चलेगा। मैं अभी आखिरी नंबर लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इसके मल्टीपल में रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AN। ओके। अब ये देखो इसमें क्या होगा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B निकालना है तो यहाँ पर I की जगह पे 1 आता है, यानी ये वाली टर्म ऊपर दिखेगी और सारी की सारी नीचे दिखेगी। अगर आपको I की जगह 2 दिया है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन B, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा लेकिन न्यूमरेटर में क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन A2, यानी ये वाली टर्म ऊपर दिखेगी। समझ में आ रहा है ना? डिनोमिनेटर तो ये सारी टर्म्स रहेंगी लेकिन न्यूमरेटर में यस सर। ये इनमें से एक कुछ तो भी रहेंगे। अगर यहाँ I की वैल्यू 1 दिया तो ये वाली टर्म ऊपर दिखेंगी, I की वैल्यू 2 दी तो ये वाली टर्म ऊपर दिखेगी, ऊपर दिखेगी। बेस रूल है। डेफिनेशन में हमने तो n इवेंट्स लिए, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैं इसके ऊपर एग्जांपल ले रहा हूं। देखो ये एग्जांपल आपको समझ में आया क्या? ये नागपुर सिटी है, मान लो नागपुर सिटी का ये अलग अलग एरिया है, ये मान के चलो ये इतने एरिया में आग लगी है जिसको मैंने बी इवेंट करके बोला है। तो ये बी इवेंट की वजह से कौन कौन अफेक्ट हो रहा है? डायग्राम से क्या दिख रहा है? A2 अफेक्ट हो रहा है, A2 A3 A4 A5 है ना, ये अफेक्ट हो रही है, लेकिन ये वाले अफेक्ट नहीं हो रहे, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी A7 given B, तो this will be same as probability of A7, क्योंकि ये अफेक्ट कर ही नहीं रही, B इवेंट इसके ऊपर कोई असर ही नहीं कर रही, ठीक है। तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस हैज एप्लीकेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और बहुत यूज होता है इंडस्ट्री में बेसिक। चलो हम एक एग्जांपल लेंगे। आप
एग्जाम्पल मैं लिखना पड़ेगा मुझे, एग्जाम्पल वर्ड्स में है, थोड़ा सा हिंदी है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो 3 मशीन्स, A, B, C produce respectively 60%, 30%, 10% of the total production, of the total number of atoms of a factory. The percentage of defective outcome are respectively 2%, 3%, and 4%. An item is selected at random. And found defective. At random and found defective. Find probability that item was produced by machine is. ये हमारा प्रॉब्लम है। देखो अब यहाँ 3 मशीन है A, B, C, एक फैक्ट्री है, वहाँ 3 मशीन है A, B, C। A का प्रोडक्शन 60% है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। B का प्रोडक्शन 30% है और C का प्रोडक्शन 10%। टोटल कितना हो गया? 100% हो गया। ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन ये 3 मशीन से होता है। अब A मशीन जो है वो 2% डिफेक्टिव आइटम देती है, B मशीन 3% डिफेक्टिव देती है, यानी 97% जो है वो अच्छा रहता है, और C मशीन 4% डिफेक्टिव आइटम दे रही है। ठीक है, अब टोटल लॉट में से एक आइटम उठाया और वो डिफेक्टिव था। अगर वो आइटम तो वो ए मशीन ने बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमको पूछा गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए ने बनाया, इसके चांसेस क्या है? राइट, ठीक है ना। लॉट में से अगर कोई एक आइटम निकाला और वो अगर डिफेक्टिव निकाला तो नेचुरली मैन्युफैक्चरर जो रहेगा कि भाई ये किस मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट हो। अब प्रोडक्ट तो सारे सेम दिखते हैं, ए ने बनाया, बी ने, किसी ने बनाया, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो बड़े आसानी से निकाल सकता है अगर ये डेटा है। अब देखो यहाँ पर आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए। अब मशीन ए कितनी प्रोड्यूस करती है? 60% प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए इज 60/100, यानी 6/10 रहेगी। इससे ज्यादा कैलकुलेट ये काटने का नहीं। वाई कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करना है ना, तो एक बात ध्यान में रखना, हर जगह पे इसको सिंपल बनाने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है, ये भी बात उतनी ही चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? अगर मशीन बी का प्रोडक्ट है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मशीन बी प्रोड्यूसेस 30%, तो ये रहेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी 3/20। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी विल बी एस 10% आइटम बना रही है, यानी ये रहेंगे 10/100, यानी इक्वल टू 1/10।
ठीक है। अब देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक इवेंट की। वो कौन सी इवेंट है कि एक एटम उठाया लॉट में से और वो डिफेक्टिव निकला। तो एटम डिफेक्टिव होना ये एक इवेंट है, ठीक है ना। तो मैं उसको नए नाम से डिनोट करता, लेट कैपिटल डी डिनोट्स डिफेक्टिव एटम। डिफेक्टिव आइटम को मैंने डी से डिनोट किया। नाउ व्हाट, अब मैं पहले बेस रूल लिखना चाहूंगा और उसके बाद में मैं ये बताऊंगा आपको, या पहले इसको बता देता हूँ। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एटम व्हेन मशीन ए इज गिवन। यहाँ देखो एक बात आप समझो, ये बेस रूल जो है, बेस रूल में देखो यहाँ ए आई गिवन भी है, लेकिन यहाँ आता है बी गिवन ए आई, उल्टे हो रही है, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन मशीन ए इज गिवन। अगर आपको ए मशीन दी है तो उसका एटम डिफेक्टिव रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो ए मशीन 2% डिफेक्टिव आइटम बनाती है, इसका मतलब ये रहेंगी 2/100। 100 में से 2 आइटम डिफेक्टिव बन रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन मशीन बी इज गिवन। अब एटम डिफेक्टिव है लेकिन मशीन, व्हाट इज गिवन टू यू, मशीन बी। तो मशीन बी 3% डिफेक्टिव आइटम बना रही, तो दिस विल बी 3/100। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन मशीन सी इज गिवन। तो मशीन सी अगर आपको दी है तो सी मशीन देखो 4% डिफेक्टिव बना रही है, तो डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी व्हेन मशीन सी इज गिवन टू यू, तो वो रहेंगी 4/100। अब मैं यहाँ बेस रूल लिखता हूँ। तो बेस रूल लिखना का देखो, मेरे को निकालना क्या है, आई वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन है, यानी आइटम डिफेक्टिव है ये हमको पता है, एक आइटम उठा लिया लॉट से वो डिफेक्टिव है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। यानी हमको क्या निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए व्हेन वी नो दैट आइटम इज डिफेक्टिव गिवन। यानी जो आइटम लिया लॉट में से वो डिफेक्टिव है ये हमको पता है, तब वो आइटम ए ने प्रोड्यूस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो यहाँ अगर हम बेस रूल अप्लाई करते तो ये आएगा पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ डी गिवन, और डिवीजन में रहेगा पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ डी गिवन है प्लस पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ डी गिवन बी प्लस पी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी गिवन सी। यानी हमने एक आइटम लिया लॉट में से, वो डिफेक्टिव निकला, वो डिफेक्टिव है ये हमको पता है, गिवन। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए निकाल रहे हैं। तो ये केस में ये वाली टर्म आपको न्यूमरेटर में दिखेंगे, नीचे तो सारी टर्म्स रहेंगी। अगर मैंने वो डिफेक्टिव आइटम बी ने बनाया है, मशीन बी ने बनाया, अगर ये चीज मुझे निकालनी है तो ये फैक्टर जो है ये न्यूमरेटर में दिखेगा, बाकी तीनों चीजें नीचे रहेंगी। तो व्हाट इज दिस, देखो हमने पी ऑफ ए निकाला, पी ऑफ ए इज, ये वैल्यू जो है मुझे ये वैल्यू की जरूरत है। पी ऑफ ए आया था हमारा 6/10, इसके मल्टीपल में रहेगा पी ऑफ डी गिवन ए, वो है 2/100। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में रहेगा 6/10 इंटू 2/100 प्लस पी ऑफ डी है 3/10 इंटू पी ऑफ डी गिवन डी है 3/100 प्लस पी ऑफ सी है 1/10, और उसके मल्टीपल में रहेगा पी ऑफ डी गिवन सी। डी गिवन सी जो है वो है 4/100। देखो मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट आसान होने के लिए मैंने ज़्यादा काटपीट नहीं की है, मैं यहाँ
3/5 लिख सकता था, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 10 इंटू 100, यहाँ पर भी 10 इंटू 100, 10 इंटू 100, 10 इंटू 100, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, देखो ऊपर आएगा 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाय, नीचे रहेगा 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 1 4, यानी ये हो गया 12 अपॉन 12 और 9 21 और 4 25। So this will be 12/25. तो ये प्रोबेबिलिटी कहती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। मशीन ए ने प्रोड्यूस करने की ये प्रोबेबिलिटी। अगर आपको P ऑफ P गिवन D निकालना है, मैंने एक डिफेक्टिव आइटम लॉट में से उठाया और मुझे देखना है कि वो B मशीन ने बनाया है, इसकी क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो चांसेस निकालना है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको चांसेस मिलते हैं। ए मशीन ने बनाया है, इसके चांसेस क्या है। नेचुरली ए का प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम डिफेक्टिव आइटम का परसेंटेज कम है, ठीक है ना। तो नेचुरली वो इसने बनाया, इसने अपने ए मशीन का प्रोडक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम दिखती है, कंपैरेटिवली इधर ज्यादा मिलेगी आपको। अगर ये निकालना है मुझे कि यानी डिफेक्टिव आइटम है ये पता है, तो बी ने बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो ये केस में ये वाली टर्म ऊपर रहेंगी, ये तो फैक्टर कैंसिल ही होने वाला है दोनों तरफ का। तो ऊपर रहेगा 9 और नीचे ये सब रहेगा 12 प्लस 9 प्लस 4, ये आ जाएगा 9/25। ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी when it is known that the item is defective. So in this case, in this way you can calculate the probabilities. चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, आज ये समझ में आ गया कह रहे आपको। हेलो बॉयज, केवल एक बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा था। शैल आई नो नेम हु वाज रिस्पॉन्डिंग मी? बेटा आई अप्रिशिएट। अरे मेरी आवाज आ रही ना? हेलो यस सर। समझ में आया क्या? चलो Yes, थैंक यू sir. बेटा, समझ में आ Yes, sir. चल। तो ये देखो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ, तो आप ये सारी कंसेप्ट दिमाग में फिट रखो, क्योंकि अभी रैंडम आएंगे प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो गेट एग्जाम के ही पुराने पेपर में से प्रॉब्लम लेके आऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर कब रहता है ये मुझे भी आइडिया नहीं है, आज नहीं बता सकता।